Almighty planned the creation, the miracle of creation about the human being. This child who entered into the world, as it says there, the greatness of the human personality begins at the hour of birth. Look at that. You know what? We don't give that any importance. और ये मैं नहीं कह रही हूँ. Who is saying this? Dr. Maria Montessori. Unfortunately, उसी लम्हे को, उस मोमेंट को, उस few hours को we go unconsciously do something wrong, जिसके side effects permanently, अगर बहुत डीप कट हो जाता है तो क्या होता है? वुंड तो ठीक हो जाता है, but the scar remains permanent on our body. So you the ladies, my topic is 3 to 6, but I cannot jump to the third step. This is the most important moment, and for those of you who were listening to me yesterday, it's all interconnected. You cannot, हम लोग किस पे importance देते हैं? जब birth होता है, is it the child or the mother? We are all concerned about the mother, but who should we actually be concerned about? The baby. Because why? Okay, ठीक है, we should be concerned about the baby. Why? This is it. Why don't we think about this? Mother तो जहाँ थी वही, मतलब उसकी थोड़ी she'll feel physically lighter, she'll go through some pain. माशाल्लाह उसको जूस और यखनी और पता नहीं पंजेरी और क्या क्या दिया जाएगा. She will be back to herself. Think about a human being जिसके दिल में धड़कन थी, जो who was alive for the last 9 months, where in the place which was so warm, so cozy, so protected. मतलब perfect, ना सर्दी, यहाँ पे तो हमें कभी सर्दी लग रही है, बाहर जाओ तो गर्मी लग रही है. It was the perfect temperature, perfect light. और उस जीते जागते इंसान के बच्चे को एक literally shove, push कर दिया जाए एक ऐसी दुनिया में जहाँ oh my God, लाइट, आंखें घूर रही है, अरे ये तो दादा की शक्ल का है, एंड पीपल आर लाइक, हम मॉन्स्टर ही लगते होंगे उसके, वो क्या सोच रहा होगा? ही इज एंटर्ड इनटू एन एलियन वर्ल्ड, दैट वाज हिज होम. येट नॉट एनी वन ऑफ अस, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने मॉडर्न उतने ही हम नेचर और इंस्टिंक्ट से दूर जा रहे हैं. It says even in our society, our culture, our religion, and according to Dr. Maria Montessori, after birth, the child should remain in contact with the mother for how many days? 40 days. बिल्कुल वही बातें. The same position. फर्क सिर्फ कितना है कि first he was inside, now he is outside. Do we do that? No, we don't. Why? Because दूसरे दिन तो चाचू का देवर का वलीमा है और सबसे बड़ी वाली बहू नहीं जाएगी, तो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, आप नहीं जाएंगे, आप बच्चे को तो नहीं छोड़ सकती है, तो you tag along your little baby in the matching pink coat. एक बाल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पोनी लगी हुई है, वहाँ पोनी लगी हुई है, and all these matching, torture. So, with all due respect, I am not going to focus on this, but this is the moment. You should pay the most attention to that. Can we change to the next slide? What do? We as adults, what should we do? Must believe that there are different types of mentality in the successive phases of growth of life of the child. Many of you must have heard this lecture called Stages or periods of development. किसी का कोई मुझे पानी दे दे.
There are 3 stages. Anybody knows them? वो तो बात की शुरू, इस स्टेज में जाए, सीक्वेंस में जाए. 0 to 6 is the early childhood. Okay? 3 to 12 is the later childhood. 12 to 18 or 12 to 15 plus, it's the puberty or adolescence. इसको यहीं पे रखिएगा. We are talking, our concern is that the child's first step, which is 0 to 6. This 0 to 6 has been divided into 2 phases. The very first one is called 0 to 6. इस पीरियड का एक बहुत स्पेशल नाम है. तभी तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही जवाब देते हैं, पूछते हैं एब्जॉर्बेंट माइंड, जवाब आता है सेंसिटिव पीरियड का. डोंट मिक्स देम अप एंड लेट्स होप थ्रू दिस लेक्चर टुडे दिस कॉन्सेप्ट फॉर वंस एंड ऑल आपके लिए क्लियर हो जाए. 0 जिस दिन वो दुनिया में आया, 6 years तक जो उसका माइंड है, उसकी क्वालिटी हमारे माइंड से बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, द क्वालिटी ऑफ द माइंड ऑफ द चाइल्ड बिटवीन 0 to 6 years has the ability, it has the potential, it has the characteristic of absorbing. Loves लिख लें, it's not observe, absorb. Okay, so as we all know, and this is the best example anyone could have ever given, okay, this is fitted in the mind of the child, 0 to 6, and it's blank. When he is born, there is nothing. Nature, कुदरत ने उसको एक पोटेंशियल दी है, एक सलाहियत दी है कि अब जब तुम दुनिया में जाओगे तो जो तुम्हारे नेचुरल 5 सेंसेस हैं, which is your ability to see, smell, hear, taste and touch. ये एक वार्निंग भी है. तुम जिस चीज से कांटेक्ट में आओगे वो चीज तुम्हें याद नहीं रहेगी, बल्कि ऐसा होगा कि मैं तुम्हें एक ऐसे दिमाग के साथ इस दुनिया में भेज रहा हूं कि whatever you see, whatever you come in contact with, it's going to be absorbed in. Oh my God, how silly. Okay, it is going to be absorbed into this sponge which is your mind. अल्लाह ताला उसको एक और वार्निंग दे के भेजते हैं. My dear little children, I am not giving you any option between the age 0 to 6. जो कुछ भी तुम सुनोगे, देखोगे, टेस्ट करोगे, टच करोगे, स्मेल करोगे, इट विल गो इन योर माइंड अनकॉन्शियसली. ये लफ्ज है अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड, मतलब तुम्हारे पास चॉइस नहीं. ये कुछ ज्यादा खौफनाक बात नहीं है. आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर मैं एक अपने रूम में, अपने प्राइवेसी में, मेरी मर्जी, मैं पैर चढ़ा के यूं बैठ के पॉपकॉर्न खा के, बिकॉज आई नो नोबडी इज वॉचिंग मी, ऑल्दो वी नो गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग अस, बट उसको माइनस करके नोबडी इज वॉचिंग, बड़े भाई नहीं आएगा, अब्बू नहीं आएंगे, अपने हिसाब से बैठे हुए. सडनली आपको जब ये पता चल जाए कि कोई आपको देख रहा है और वो आपको कैप्चर कर रहा, आपकी मूवी बना रहा, वीडियो बना रहा,
अब वो भी डिलीट नहीं हो पाएगी, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हाँ, जल्द से कॉन्शियस हो जाए ना. बट दिस लिटिल वन, पोर चाइल्ड, 3-year-old, he is not even conscious. If he is not conscious, then who should be conscious? Huh? The adults. Let's put it that way. Adults में grandparents भी आ जाते हैं. Between the age up to 6, it is the adult. They know this. Unfortunately, they don't know this. लेकिन you know this now कि this mind जो कि याद भी नहीं रखता उसको, वो तो भूल जाएगा, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी हो जाएगी. तो हमारा जॉब है ना कि what we say and do in front of the child. So that is the base, that 0 to 6 is the most dangerous period of the child's life, because he is not aware कि वो क्या, उसे तो अच्छे बुरे का पता ही नहीं है. Yesterday I was telling my niece, 2.5 साल की थी, ऊपर छत से एक छिपकली गिरी, वो उसके पीछे भागी, छिपकली जिंदा था, उसने उसको मुंह में डाल लिया और चबा ली, बिकॉज उससे नहीं पता था. इट इज ट्रू, जरा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं. एंड समटाइम लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस कैन हैपन. अब वो बेचारे माँ बाप का कसूर नहीं, उनको क्या पता था कि वो छिपकली छत से गिर जाएगी, बट द चाइल्ड डिडंट नो. सो he takes everything. Let's complete that. 0 to 3 years, the child absorbs everything in the environment, good or bad. पानी ठंडा है, गर्म है, महंगा है, स्मेली है, काला है, गोरा है, लाल है, पीला है. The mind will take it in. It's helpless. Agree? Any question related to the unconscious absorbent mind between the age 0 to 3 years? All of you who are trying to take a nap, hello, उनको उठाते हैं जी. क्या सवाल मैंने पूछा? Yes. You know, हाई, इससे ज्यादा किसी टीचर के लिए इंसल्ट हो सकता है? क्यों सो रही थी? अच्छा चल, क्या बोला मैंने आखिरी से? Okay, Zen, can you all of you take a deep breath and sit up straight, wake up. इसीलिए ये लेक्चर लंच से पहले हो रहा है, so that you don't get lazy. And believe me, these words, some of the examples you will never find in any book or Google. एक नया बच्चा बॉर्न करवा ले. हाँ, यही तो जवाब दे. ओके ओके, यू डोंट, I'm not ridiculing, but you see, that's, वो वक्त गुजर गया, too late. अभी तो मैं सिर्फ 3 पे आई हूँ. My main aim is to go from 3 to 6. Okay, let's see what happens here. According to Dr. Montessori, the most important period is not the university studies or age, but the first one, the period from birth to 6 years. For this is the time when man's intelligence itself is being formed, not only for his or her intelligence, but the full totality of his psychic power. पूरी जिंदगी का निचोड़ इस पैराग्राफ में है. बिकॉज वी एज अडल्ट, हर माँ बाप की, इंक्लूडिंग मी, यही ख्वाहिश होती है कि इंशाल्लाह वन डे आवर चिल्ड्रन और आवर चाइल्ड विल ग्रो अप एंड वी स्टार्ट टू सेव, कि हमें इसे अमेरिका भेजना है और किसी फॉरेन कंट्री में फॉर better studies, higher studies, and to attend the best university. ख्वाहिश है कि नहीं? Raise your no? What you want to do with your child when, if you, I don't think you are married, right? जब शादी होगी इंशाल्लाह, बच्चे, तो यही तो सवाल पूछा मैंने.
यही तो, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। अल्लाह, कितने, दोनों हाथ उठा ले। हाँ, दोनों को भेजेंगी, आप नहीं, क्यों? कब तक? शादी के बाद तो वो चले ही जाएंगे, घर में रह के भी चले जाते हैं वो। हाँ, तो वो तो फिर भी the children are gone, don't worry। बस वो आपके तभी होते हैं जब वो अनकॉन्शियस एब्जॉर्बर माइंड पीरियड में होते हैं। ओके, एनीवे, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, majority of the parents, उनका ख्वाब होता है, उनका ड्रीम होता है, and believe me, you have no idea how much sacrifices we make, saving and this and that, you know, but we do it at the wrong time. We plan for his future without planting the seed for that future. इस टाइम पे हम कितने हैं जो फोकस कर रहे हैं टोटली बिटवीन द एज 3 to 6? How many of you believe and you are doing something, except for Ma'am Shumaila, who are really doing and going out of their way, her way, and learning against the world? I mean, you know, for the sake of a child, because she knows as a Montessori mother कि 3 to 6 is now the time. अब वो बेवकूफ़ भी नहीं रहा. He has become conscious. He's become aware. He has developed new things like will. कभी किसी ने सुना बच्चे अब कहना शुरू करते हैं 3 साल के बाद, मम्मा मैं खुद करेगा, अली खाएगा. I mean they want to do it all by themselves. हाँ, मैं exactly. एंड हम इसी टाइम पे सबसे अच्छा 0 to 3 वाले बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज उस वक्त तो हम बॉस होते हैं ना, बेचारे के पास ज़्यादा मर्जी नहीं होती है. आप रोते हैं, आप प्यार करते हैं उनको. यू लव योर चिल्ड्रन व्हेन दे आर सो स्मॉल. ज़्यादा चीज़ें डैमेज भी नहीं करते. द प्रॉब्लम एंड द न्यूसेंस स्टार्ट्स व्हेन द चिल्ड्रन, वो भाग है, वो कैच भी कर सकता है. आपका मोबाइल लिया उसने और आपको चुरा भी सकता है, भागेगा और आपकी जान जाएगी. बच्चा गिर जाए तो गिर जाए, इससे कुछ ना हो. एंड दे लुक हियर एंड देयर एंड दे थ्रो इट. आई रिमेंबर वंस माय चाइल्ड थ्रू माय मोबाइल इन द डस्टबिन. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. जल्दी से निकाला, मैंने मोबाइल को धो दिया. नेचुरली खत्म हो गया. लेकिन बाद में दिल तो चाहता कि बच्चे को भी धो दूं, लेकिन आई वॉज अ मॉन्टेसरी मदर, आई कुडंट डू इट. बट दिस इज द टाइम, द मोस्ट fascinating, difficult, the most learning period in the life of the child is the 0 to 6 years. And guess what? उसकी जिंदगी में एक ड्रामेटिक चेंज आता है. वो क्या है? नहीं, वो भी बिल्कुल इसके साथ चलता है. आज मेरी टॉपिक सेंसिटिव पीरियड नहीं है, कल थी किसी की. वो आप लोग बिल्कुल एब्जॉर्बेंट माइंड और सेंसिटिव पीरियड को मिक्सअप कर देते. वो एक अलग कहानी है. दोनों में सिर्फ कॉमन बात एक है कि दोनों की एज सेम है. सो राइट नाउ आई एम आस्किंग यू, what is the most important change that comes into the life of the child after about 2.5 to 3 years? He becomes conscious. इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर विल हो जाता है. He develops like I, ego. एक हॉल में उसके अंदर एक टीचर होता है, वो ये कहता है हम चॉइस करते हैं. मतलब you know we ask the child कि you want to eat this, you want to do that, we can do that. हाँ, प्रोटेस्ट कर, अपनी मर्जी जाहिर करता है. Now when अगर हम एज ए मॉन्टेसोरियन इस बात को बिलीव भी करते हैं कि अब मेरा बच्चा, हम लोग मॉन्टेसरी में तो देखें कल प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हुआ था. वी इवन आस्क द चाइल्ड टू सेलेक्ट अ मैट. पूछना तो बहुत बड़ी बात है ना कि वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी. एंड बच्चा कहता मुझसे पूछा जा रहा हूँ, माय गॉड, मम्मा ने तो कभी नहीं पूछा. तो अकड़ जाता है, बिल्कुल कपड़े में कलफ लग जाता है, कहता नो. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आस्क द चाइल्ड द फर्स्ट टाइम क्या आपको आंटी के साथ काम करना है, तो वो कहता नहीं. फिर बाद में when he realizes the work is so important that you know he wants to do it. We
even give them the selection of choosing a mat. बेटा आप इस वाले मैट से काम करना चाहोगे या इस वाले? आप ये घर में करने की कोशिश करें अपने इकलौते बच्चे के। हाँ, तो क्या कर, आप घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? आप अपने हाथ, आप मेरी स्लाइड चेंज करें। जी, घर वाले का क्या रिएक्शन होता है? हाँ, देखो, बिलीव मी गर्ल्स, मैं जो हूँ ना, ये वहाँ पे भी लेडीज बैठी हुई हैं, वी आर हेयर एंड मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर इन दैट स्टेज। दुनिया का, एंड आई एम टेलिंग यू, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है to apply the Montessori method at home with your own child. Being a woman is difficult. Being a mother is more, देखें, being a woman is difficult. Being a mother is more difficult. But being a Montessori mother, कहते ना, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन impossible है, इतना मुश्किल है। एक तो आपका बच्चा खुद आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ टीचर। दे ऑलवेज से मम्मा, आप मेरी मम्मा है, आप मेरी टीचर स्कूल में। तो आपके सारे शौक अरमान वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी चलो आउट ऑफ द वे, अगर आप उसको सिलेंडर ब्लॉक नहीं दे रही हैं घर में, तो आप छोटी मोटी चीज़ें ट्राई करती हैं ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, वन डे माई सन, ही वॉज अबाउट 3.5, सो यू नो इट वॉज जस्ट हिम एंड मी। सो स्टैक रखे हुए थे टी शर्ट्स के, रेड, येलो, ब्लू एंड ऑल दैट। तो आई सेड ओके, चलो भाई, ये बिल्कुल चूजिंग अ मैट वाला एक्सरसाइज है। आई आस्क्ड हिम, ओके बेटा, विच शर्ट वुड यू लाइक टू वेयर? एंड यू नो ही लुक्ड एंड ही थॉट, एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि द ट्रू मॉन्टेसरी चाइल्ड इज देयर। एंड ही पॉइंटेड आउट कि यू नो बीच में से कोई कलर, उसका फेवरेट कलर ऑरेंज था, तो ही सेड मम्मा दिस वन, एंड मैंने उसको ऐसे ऐसे करके निकाला, जस्ट लाइक दैट, एंड गिव इट। एंड ऑल दिस टाइम कहीं दरवाजे के पास से माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग। और जो मेरी क्लास ली गई है बाद में, इस उम्र में तुमने इससे पूछ क्यों नहीं हो? अरे पहनाओ जो पहनाना है। आई मीन दैट्स हाउ टिपिकल पीपल इन द फैमिली आर, जितने भी एजुकेटेड हो, कि 3 साल से बच्चे ये थोड़ी पूछते हैं, कल को तो वो तो फिर बड़ा होके तुम्हें कहेगा मुझे इससे शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है, फिर क्या करोगी? डू नॉट, पेरेंट्स जनरली थिंक डोंट गिव द चिल्ड्रन द चॉइस, बट we the Montessorian, according to Montessori, we say give the children the freedom of choice. ये कितना बड़ा फर्क है। देखिए ना, आप में से हम सब लेडीज हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड एंड माशाल्लाह वी आर ऑल कॉन्फिडेंट, लेकिन आप में से कुछ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन लाइफ। व्हाई इज दैट? यस, because of the confidence that was the choices that was given to you at an early age, 3 to 6. आपको पता था कि आपको वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, आपको ये पसंद है, एंड यू मेड अ पॉइंट एंड यू रिमेन लाइक दैट। सो आज अगर आपने मॉन्टेसरी कोर्स डिसाइड किया, तो यू नो कि दैट्स व्हाट यू वांटेड टू डू, नॉट बिकॉज खाला की बेटी कर रही है, नॉट बिकॉज रिश्ता अच्छा हो जाएगा या वीज़ा मिल जाएगा, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू डू इट। और कामयाब लोग इवेंचुअली तो यही होते हैं ना, हु कैन मेक दिस। आई नो ऑफ पीपल जो उन्होंने आज जैसे ये वाला प्रोग्राम में ये पहन लिया, नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने दोस्तों से ये सवाल पूछते रहेंगे, यार वो ठीक था, नहीं नहीं मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा ही घरेलू लग रहा था, नहीं बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, ब्लू मैचिंग होना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा वाइट था तो ब्लू तो लग ही नहीं। मतलब ज़िंदगी भर वो मतलब काम कर भी गए, मतलब कब्र में पैर भी लटक गया, लेकिन उनको उस बात पे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि was I right or was I right, was I wrong or was I wrong. So those are the people, ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका दिल करता कि गला मतलब यू नो दबा भी दें, हिलाए नहीं, ऐसे हैं। आपका गला दबाऊं? अच्छा नहीं, एज अ मॉन्टेसरियन अब जब से मैंने कोर्स स्टार्ट किया, तो ये जो एक टेक्निक है ना कि बच्चे से परमिशन लेना, इट्स वेरी मच पीसफुल। पूरा दिन शोर शराबा नहीं होता, आप उसकी चॉइस से काम करते हैं। एग्जैक्टली। और आप अगर चॉइस से नहीं करो तो पूरा दिन वो जिद, रोना धोना, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इसमें ही लगे रहते। बिल्कुल, तो ऐसा क्यों? ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो अब मैंने बड़ा घर में एक्सेप्ट
अप्लाई करें माशाल्लाह। बच्चे में आया है ओके बच्चा एक वो अपनी चॉइस बताता है फिर रिलैक्स हो जाता है कि भाई मेरा काम ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ कॉन्फ्लिक्ट मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी राय दे सकती हूँ। हम फैमिली जॉइंट फैमिली और दादा नाना दादा दादी तो उनकी अलग ही कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ये खिला दो बच्चों को ये नहीं करो, इसकी बात नहीं सुनो। नहीं तो देखिए मैं इसको इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, लेकिन एक बात बता दूं, देखिए पहले ज़माने के लोग 8-8 9-10 बच्चे पाले थे, और जब आपको टोकते हैं ना कि हमने भी बच्चे पाले हैं, इस तरह के चोचले नहीं देखे हैं, सुनने में आता है नहीं ऐसे सेंटेंसेस राइट, कि एक बच्चे को सही से खिला नहीं सकते, तो मिस्टेक इज़ आवर्स, सॉरी मिस्टेक इज़ आवर्स। उसके लिए बिल्कुल टोटल डिफरेंट सेमिनार है, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग चाइल्ड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यू ऑल शुड अटेंड इट। लेकिन अभी वो बात नहीं है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड 0 to 3. Let us not focus on the home environment, okay? Let us focus in actually what happens to the child in the school environment, because he goes to the school at that time, ठीक है? And who is there with him? The directress. इसीलिए तो देयर इज दिस पर्सन, एक लिंक है। एक तो नंबर 1 मॉन्टेसरी मेथड इज द ओनली मेथड पूरी दुनिया में, किंडरगार्टन, नर्सरी और ऐसे ही मोहल्ले वाले गली वाले स्कूल को ले ले, सिर्फ उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। वो क्या है? हाँ मतलब 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ओके? कहीं भी आप मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यू नीड अ टीचर और अ प्रोफेसर एंड यू नीड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी राइट नाउ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या सर्दी हो गई तो हम कह सकते हैं चलो लेट्स एंजॉय द मौसम देयर एंड आई विल गिव यू द लेक्चर एंड यू ऑल कैन लिसन। कैन वी स्टिल हैव अ क्लास? यस वी कैन। ऑल ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड टाइम मेथड में यही 2 फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, इसलिए कि सारा नॉलेज तो मेरे पास है, आप लोग तो यहाँ सीखने के लिए आई हैं। बट इन द मॉन्टेसरी मेथड इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके? इट इज़ नॉट लाइक दैट, देयर इज अ थर्ड न्यू फैक्टर। वो क्या है? यस, द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। ओके, अब 2 सवाल और। Why Dr. Maria Montessori did not call the classroom and she called it the prepared environment? थोड़ा जवाब इधर से भी आ जाए। Yes? क्या क्या फिर से सबको सुनना है, जोर से बोलिए। ओके, और तो क्लासरूम में ऐसा नहीं है? अच्छा, ओके, इनका जवाब है कि इन द क्लासरूम, यू नो, द क्लासरूम इज लाइक अ क्लासरूम, वेयर एज इन द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट हर चीज़ बच्चे अलग अलग बच्चे के हाइट से है या बच्चे के हिसाब से है। किसी और के पास कोई और जवाब है? या ओन चॉइस और कंप्लीट मटेरियल। मैम क्लासरूम में बच्चे को एक पूरी ग्रुप स्टडी से पढ़ाई जाती है, चाहे उसकी विश हो या ना हो, लेकिन में बच्चे की विल के हिसाब से हम उसको वो चीज़ सिखाते हैं। ऑलराइट, ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ आंसर्स। यस, 1 minute, आई एम कमिंग टू यू। या अनदर एस्पेक्ट के क्लासरूम में बस एक टीचर होती है। इन द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट इज इनकम्प्लीट, इट्स नॉट ए प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट अनलेस देयर इज अ केयर टेकर हु इज नॉट ए टीचर, शी इज द मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। इसकी वजह से भी इसको कॉल्ड प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। ओके, ठीक। सो अगेन इफ यू कैन नोट इट डाउन और कीप इट इन योर माइंड, at least 10 points that makes the Montessori environment, the Montessori system, the Montessori method
different from any other system between the age 3 to 6, and that is the introduction of the prepared environment. ओके वो चाहती तो इसका नाम क्लासरूम रख सकती थी, लेकिन नाम बदला। क्यों? अगर हम इस दो वर्ड को ब्रेक करें, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, हाँ, इट मीन्स समथिंग इज प्रिपेयर्ड, उसको तैयार किया गया है। द वर्ड इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को तैयार किया गया है। क्वेश्चन इज नाउ फॉर whom? The child. So a classroom is for anybody, but this environment is for the child, especially during the age 3 to 6. During the age of 3 to 6 years, there is an intense and specialized sensitiveness, in consequence of which the things about him awaken so much interest and so much enthusiasm that they become incorporated in his existence. ये बात किसी और को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टीचर को पता है कि the life of the child between the age 3 to 6 क्या होता है। He is like fascinated, उसको मतलब हर चीज अट्रैक्ट करती है। और एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें आप लोग मतलब ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। कुछ जेंट्स होते हैं लाइक जहाँ उन्होंने कोई अच्छी खूबसूरत सी लड़की देखी तो दे आर अट्रैक्टेड। एक एग्जांपल है, होता है ना, ठीक है, राइट? So and like they just don't know where to go, right? There's a beautiful lady, एकदम इधर आ गए, another one, wow, so for the child, the prepared environment, the age between 3 to 6 is like that. We can't help it. एक inner urge है, desire है, pink tower, oh my God, he wants to work with that. Then he sees the EPL and all that. लेकिन that child is वो फिर वो जेंट्स की तरह नहीं होता कि अफरा तफरी इनको भी हाई कर दिया, उनको भी हाई कर दिया, ऐसा नहीं है। ही हैज़ मोर पेशेंस, मोर डिसिप्लिन, ही वॉन्ट्स टू वर्क। राइट नाउ ही डिसाइड्स आई वॉन्ट टू वर्क विद द पिंक टावर, और वो खुशी से, खामोशी से, लुक एट द इंटेंस अट्रैक्शन, एंड ही वर्क्स एंड अमेजिंग की बात है कि ही वर्क्स। मतलब you might find a child in your prepared environment working with the cylinder block or the pink tower for maybe 45 minutes without losing concentration, without losing focus. तो जब ये एक राज हुआ ना, एक मैजिक हुआ, जब हमें ये पता चल गया कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में बच्चे खेल ही खेल में just by being there can take everything and look at that word, incorporated in his existence. इसका क्या मतलब है शुमाइला? इसका क्या मतलब है? बहुत जवाब देना चाह रही थी ना। Right? It becomes him. मतलब my 3 to 6 years is me today and you too. That is how powerful it is. That's why in the prepared environment, the Montessori directress एक second waste नहीं करती है. From the time the child enters and leaves for the home, कुछ न कुछ constructive, the word is constructive, some sort of constructive activity is being done which may seem meaningless waste of time and disturbance for adults at home. अगर वही बच्चा जो काम मॉन्टेसरी स्कूल में करता है वो घर में करे तो आप लोग डांटना तो दूर की चीज़ है, उसकी पिटाई भी हो। आई मीन इट्स लाइक झाड़ू देना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, एक बीन्स को दूसरे बीन से डालना, ज़मीन को थोड़ा गीला कर देना। हाउ मेनी ऑफ यू विल अलाउ इट एट होम? Okay, you will allow at home, but ask her, will her in-laws allow it? No. She has to listen to tons, tana, and it's a whole sort of negative scenario at home.
and that is true for all, believe me, because when our parents, older parents, जब ये कहते हैं हमें कि हमने भी तो बच्चा पाला है, वो गलत कहते हैं. उन्हें कहना चाहिए हमने भी बच्चे पाले हैं, because 8-9 बच्चे पल जाते थे. The problem is to एक सिंगल चाइल्ड को पालना. He is an isolated child ना at home. उसके पास ना कोई दोस्त है ना कुछ है, एंड तो फिर वो क्या करे? His energy has to be used. तो नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, फिर वो कुछ गिरा देता है. He goes and hides under the chair. And but in olden days 8 years, 7 years, 6 years, कभी कभी तो बिल्कुल 9 months के डिफरेंस में बच्चे 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 लॉट्स ऑफ बच्चे होते थे ना. 12 बच्चे हो जाते थे माशाल्लाह, और मतलब पल भी जाते थे और अच्छे पलते थे. They knew all because under that roof they got everything. Complete life था ना. दादा दादी, चाचा चाचू, फुफ्फो, कजन्स, भाई, अच्छा चचा जात, मामू जात, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कजन, जिन्हें बहुत दिन तक तो पता ही नहीं था कि वो सगे भाई. अब नाउ एक आइसोलेटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, एक बच्चा है, मामा भी काम करती है. लुक एट मी, आई वर्क ऑल डे. I just have one son and only one husband, unfortunately. And well, मतलब कुछ तो कमी. So in the longer days, our children got a complete life under the one roof. Okay, I hope you will respect your elders. वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं हुआ ना, बिल्कुल सही कहते हैं. आजकल के पेरेंट्स, वी आर द वन हु आर लैकिंग. हमें नहीं पता है what is the nature of the child. Fortunately, alhamdulillah, you are doing the Montessori course, and now the first days of life at home before you send the child to school, वो एक another story है. But let us focus right now at this part, the 3 to 6. When you are there at home as a mother, when you are there in the Montessori school as a teacher, now at least what are some of the qualities that you must know in order to apply the system and understand the child? Let's see, is there any more? Last है ना? हाँ. In order to understand the child. Number 1, please अगर लिख लेती, नहीं है ना कुछ लिखने को, अपने भी दिमाग आप लोग का इतना शार्प है. ओह, आजकल की टेक्नोलॉजी, ठीक है. ओके, टाइप इट आउट ऑन योर. ओके. Number 1, the child, all children all over the world are born with a special mind called the. It lasts from 0 to 6 years. 0 to 3 is unconscious. उसका मतलब कुछ भी अच्छे बुरे का उसे तमीज नहीं है. जो भी देख रहा है, सुन रहा है, स्मेल कर रहा है, it's going inside the mind. 3 to 6, it becomes conscious. Along with the absorbent mind, God has blessed every child. I mean every means American, black, Chinese, गोरा, अमीर, गरीब, सब बच्चे दुनिया के, they pass through something called sensitive period. Who can tell me what is sensitive period? अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया. शुमाइला खामोश रहिएगा. Learning, what is sensitive period? इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें. सेंसिटिव का मतलब सेंसिटिव, बहुत फ्रजाइल, बहुत नाजुक. पीरियड मीन्स टाइम, फैक्टर, एज, स्टेज. बट ये दोनों वर्ड पुट टुगेदर डज नॉट मीन दिस सेंसिटिव पीरियड. The urge of doing something. Okay, to a certain point. Now, within the age 0 to 6, every single child passes through a sensitive period, meaning he is more attracted towards certain things. वो चीज़ हमेशा से थी, लेकिन जब वो उस सेंसिटिविटी पे आता है तो वो चीज़ उसे ज़्यादा अच्छी लगने लगती है.
फिर एक ऐसा वक्त आता है ये सेंसिटिव पीरियड पीक पे पहुंच जाता है तो और अच्छी लगने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा रहता है और वक्त के साथ साथ एट द एंड ऑफ 6 years वो कम होते होते ख़त्म हो जाता है. There are 7 major sensitive period. The main one is language. I have another lecture about language, so you will get more information about the sensitive period for language. Another example which I like to share, I know we are all female and we can all relate to it, कि I personally believe that हमारी ज़िंदगी में अभी भी sensitive period different चीज़ों की, like when we were teenager हमें movies, मुझे गाने बहुत पसंद थे, movies पसंद था, you know मेरे ज़माने के हीरो के posters मेरे रूम में थे and I wondered, I mean how weird, but that was the attraction, the sensitivity towards that. The perfect example is that if any one of you all are all 100% normal girls here, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे आपकी लाइफ में किसी भी कज़न, नेबर, कॉलेज फ्रेंड was very attracted to you, not towards you. आपको कोई कभी ज़िंदगी में अच्छा लगा? हाँ है ना, लगा ना, मतलब हम लोग फरिश्ता तो नहीं है ना. And there was this, रातों की नींद खत्म हो गई, हुआ है, and some people are married and living happily ever after. लेकिन वो sensitive period था when you know nothing mattered and it was just that. मतलब फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जैसे मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कैसी सेंसिटिव पीरियड है ये, कि लोग दुनिया छोड़ देते हैं, बागी हो जाते हैं, लेकिन वो जब पीक पे आता है फिर क्या होता है वो सेंसिटिव पीरियड को 6 साल के बाद मुलाकात होती है, 4 बच्चे उनके, 3 आपके, एंड यू आर सो न्यूट्रल, द फीलिंग इज डेड, इज क्रश्ड. द सेम थिंग फॉर द चाइल्ड. द लैंग्वेज, वही लैंग्वेज जिसके लिए ही वाज सो अट्रैक्टेड ड्यूरिंग द सेंसिटिव पीरियड. अब लुक एट अस, कैन यू एंड आई लर्न टू स्पीक फ्रेंच effortlessly? Because why? Why? Because the sensitivity for learning a language is gone, disappeared and finished. So now let's hope with my example you will understand the sensitive period in the life of the child from 3 to 6 especially in a much more better way. Then what else is there in the child between the age 3 to 6? The Montessori child, 3 to 6. The freedom to choose. ये है, इसको आपने क्रश किया तो वो वही बन जाएगा या बन जाएगी कि ज़िंदगी भर सोचते रहे मुझे ये खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था, मैंने सही कपड़े पहने थे, गलत पहन, दे कैन नेवर डिसाइड. Decision maker. The confident child is that Montessori child who knows what he wants, who knows, और वो आपको भी कहता है ये सही है ये गलत है, मम्मा आप ये मत करें, मम्मा आपको शुगर है आप बहुत मीठा खा रही हैं. They know. आप कहते हैं ना. Now another thing, 0 to 3, 3 to 6. How many of you are Montessori teachers? Oh, nobody. Well, you will love it being one. When you actually ये theory है ना, जब उसको practically देखेंगे तो you will say कि oh yes, Ma'am Alia, Ma'am no this, Ma'am Anjum, they said that, और ये है, वाकई है. Every child who comes to the Montessori school, he comes with some sort of deviation. ये एक अलग topic है, लेकिन simple word में the meaning of the word deviation means कि उसके अंदर वो normal बच्चों की quality नहीं है. अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो abnormal है. Actually उसके अंदर उन बच्चों की क्वालिटी है जो हमारे दुनिया में हमारे सामने है, हमारे घर में है.
अगर आपको मैं कहूँ थिंक ऑफ चिल्ड्रन 3 to 6, क्या क्या सुनाई दे रहा है? दौड़ना, भागना, चीखना, पुकारना, शोर हंगाम। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। तो गुड न्यूज़ फॉर अस, दुनिया के सारे बच्चे बिल्कुल डिविएटेड हैं। वो बच्चे नहीं है जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने डिस्कवर किया। इट इज़ वेरी ट्रू। मैं भी कहती थी हाय मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, because he is a result of the, not only me, he is the result of the whole environment, the home environment and the further environment, and so are our children. So we, all of us, with love and respect for our own children, we keep reassuring ourselves कि अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा तो समझदार भी हो जाएगा एंड मैजिक से हर चीज़ यूँ सब ठीक हो जाएगी। लेकिन सब ठीक होता नहीं है, बल्कि और ख़राब होता जाता, बिकॉज द सीड फॉर डिविएशन वी प्लांटेड इन द अर्ली चाइल्डहुड एंड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक आई यूज़, अगर आपने आम के दरख्त का बीज लगाया हो कि उसमें से सेब कहाँ से फलेगा? इज दैट पॉसिबल? वी आर आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल. So the children in your school, when you are working as a Montessori teacher, you will find them fighting, cheating, lying, stealing, एक दूसरे को स्क्रैच करना, टेबल के नीचे चले जाना, चीज़ों को गिरा देना. And it is your job, your aim to normalize them. अब normalize का मतलब क्या है? Let us take a look at the qualities of a normalized child according to the finding of Dr. Maria Montessori, especially during the age 3 to 6. Number 1, he loves to repeat an activity. ठीक है, याद रखिएगा. देखा है किसी बच्चे को कोई काम कर रहा है तो कर रहा है तो कर रहा है तो कर रहा है, so silly, purposeless. फिर घर में होता है तो हम एक लगाते हैं. ये क्या है? You are wasting time. हाँ भरते ही रहे, हाँ धो रहे तो धो रहे तो धो रहे. हम अगर अडल्ट इस तरह करेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम पागल है. बच्चा बेचारा, उसको भी हम रोक लेते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि बच्चे दे आर बस वो एक छोटा अडल्ट है. बट अ Montessori teacher does not stop the child. So the child is passing through that moment when he wants to repeat anything. You, the teacher, will allow him. The child is passing through free choice. आपने उसको कहा कि would you like me to show you how to hold this glass? No, auntie. Will the teacher force him? I want to hold that purse. Purse? दिल में सोचा तो क्या मुसीबत है. Come on, come along. To hold this purse. See, this is how to hold it. Would you like to hang it? And EPL में you can include new things. Okay, you see, now let's put it back. And वो भी खुश, आप भी खुश. Freedom of choice is at the top of the best Montessori environment का result. Number 1, repetition. Number 2, free choice. Number 3, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करूंगी which confuses most of the Montessori directors. Dr. Maria Montessori says, do not reward or punish a child. किसी को ये बात समझ में नहीं आती है. क्या मतलब बच्चे को रिवॉर्ड? अरे इसने इतना अच्छा काम किया तो उसको एक आइसक्रीम तो बनता है ना. हाँ, शाम में विल गो फॉर अ ड्राइव. बेटा आपने इतनी अच्छी कलरिंग की है, मम्मा विल गिव यू आइसक्रीम. वो क्या है? Yes, blackmailing, right? That's not rewarding him. And what about punishment? Ali, finish your homework. If you don't, हाँ slap you. या रात का खाना बना. अल्लाह कितना जालिम है. I mean रात पेरेंट्स बच्चों को सोने के लिए भेज देते हैं भूखे. मैं कोई बात भी दिल से नहीं बोल रही हूँ. These are life examples. हाँ, मोबाइल तो सच्ची पनिशमेंट है. मोबाइल देना भी नहीं चाहिए. अल्लाह बाबा कमरे में काली बिल्ली है. I mean, look at the fear.
खाए। अगर मतलब अगर तुमने ऐसा किया, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। सो वो क्या करेगा? एक बार बेचारे ने बुरा किया, रात में भूखा सोया, दूसरे दिन गलती से बुरा हो गया, लंच भी गया, तो फिर वो तीसरी दफा क्या कहेगा? हु केयर्स? ढीठ बन जाते हैं, दे बिकम लिटरली सो स्टबर्न एंड दे बिल्ड अ बैरियर अराउंड देम। और आपकी बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सो फिनिश करूं आपको वहां पे, राइट, लास्ट सेंटेंस। सो since the child is the seed of the human being, and all we human being, at no matter what stage of our life, we need to be encouraged, we need to be appreciated. So please girls, from today onwards, when you come across a child, especially 3 to 6, do not reward him, do not punish him, appreciate him and encourage him. Thank you so much. बस चलो, थैंक यू। एक क्वेश्चन है जैसे मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया, मॉन्टेसरी में जब जाता था तो उसकी टीचर उसको स्टार नहीं देती, तो वो बहुत डिसहार्ट होता था। तो फिर स्टार देना या बच्चों को थोड़ा ट्रॉफी, देखिए मैं बताऊं, अगर 2 सेकंड सर, देखें मैं क्या करती थी। एक बच्चे ने कीड़े मकड़े जैसी एक लाइन बना के, आंटी देखिए कि मैंने बनाया, रियली कितना प्यारा है, एक स्टार दे दिया, बिकॉज शी डिड हर बेस्ट। दूसरे ने एक बहुत अच्छा सा एप्पल बनाया, उसको भी स्टार दे दिया। ट्रीट देम इक्वली। सो द टीचर वाज डूइंग रॉन्ग, शी शुड एनकरेज। डिस्कस किया था, शी सेड कि एक बच्चे को दूंगी, दूसरा डिसहार्ट होगा। नहीं, क्यों डिसाइड होगा? सबको दे, बिकॉज ईच आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। गौर कीजिए ना। And it's up to us. Again, last sentence. We can either make a child or break a child. Question time खत्म हो गया ना सर? हाँ। एक है। फिर उसको एक ऐसे वे में, इनडायरेक्ट वे में आप उसको रियलाइज करवाएं कि what he has done wasn't good. Like suppose he has a glass of juice, उसने सारा पी लिया, छोटा भाई को उससे शेयर करना चाहिए था, उसने नहीं दिया, राइट? अब आप उसको, हम लोग मार देते हैं, या नेक्स्ट टाइम छोटे भाई को 2 दिला देंगे, वो बेचारा को और तरसाएंगे। तो बी टैक्ट, इसी हम लोग इंटेलिजेंट अडल्ट है, वी कैन फाइंड इन बिटवीन वे टू मेक हिम रियलाइज दैट यू हैव डन रॉन्ग, not without telling him. इसीलिए we have something called built-in control of error. हम बच्चे को कभी मॉन्टेसरी में रॉन्ग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जब ऐसा काम करता कि उसे खुद ही अंदाजा हो जाता कि उप्स I did it wrong, so he will realize it, inshallah. Okay, thank you for being such a nice audience. Okay. Oh, अच्छा लगा, ऐसी appreciation is good.